ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਐਡ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 100-200 ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਢੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਰ ਜਾਂਦਾ। वेलकम बैक एवरीवन, सबका स्वागत है। और आज है टेल नंबर 6 नंबर है ना आज भाई? 6 है। तो 6 नंबर में आपका स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है वो काफी घमासान गंभीर होने वाला है। ये भाई कह रहा है गंभीर बहुत खतरनाक शब्द है, थोड़ी लेमल हिंदी में बात कर। गौतम गंभीर सबको पता है। चलो आज का जो मुद्दा है वो होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पर आके अपना बसेरा बनाना कैसे है, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, क्या क्या आपके डूज हैं, क्या क्या आपके डोंट्स हैं। ठीक है जी, सभी चीजों को हमने अच्छे से ब्रेक डाउन किया हुआ है, नोट्स है हमारे पास पड़े। और जिस भाई को जरूरत है, कोई भाई आ रहा है नया या कोई बहन आ रही है या कोई कपल आ रहा है इंडिया से या कोई फैमिली माइग्रेट हो रही है, उनको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर हमने अच्छे से अपना टाइम निकाल के, समय निकाल के सब सेट किया। उसको अपनी कॉपीज निकालो और नोट करना स्टार्ट कर देना भाई। मैं ज्यादा इसको बोरिंग नहीं करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा कंटेंट है आज बोलने वाला। तो स्टार्ट करेंगे भाई हम स्टे के साथ। सबसे पहली चीज यही होती है लास्ट वाली जहाँ पे हमने क्या खत्म की थी एम्बैरेसिंग। अरे हाँ वो भी तो बोलना था। अच्छा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या थी तेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट, तू बता। अरे मेरे से स्टार्ट करोगे यार? हाँ मेरे तो स्टार्ट करोगे। यही एम्बैरेसिंग थी, यही थी एम्बैरेसिंग। भाई को ये नहीं पता चलता भी भाई ने हिंदी बोलने की पंजाबी बोलनी है ना, हिंदी से जहाँ पर खत्म होता है वहां से आगे स्टार्ट कर देता है। नहीं हिंदी में मेरी एम्बैरेसिंग हो जाती है ना, तो पंजाबी फिर भी ठीक है। चलो बोलो। पंजाबी दसा ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀਗੀ। ਕ੍ਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਸ चल टाइम नहीं है अपने को, पे खिंच के आंदे। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। मैं सिल्क तो मिल कर सूखी मैं सूखी कपड़े तो थाल लगा ਨਾ ਸਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ सिल्क ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। अच्छा जी। ਵਾਹ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ 5ਵੀਂ ਕੇ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ, ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਜਿੰਨ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਯਾਰ, ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, बोरिंग ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ को हिंदी में, हमें हासा आना चाहिए, हंसी आनी चाहिए, हंसी हंसा हमें हंसा आना चाहिए। एम्बैरेस हो गए भाई, ये हो गया एम्बैरेसिंग। पहले तो हमारे साथ जो भी हो रहा, 5th टेक में ये बात हो रही है। आधा पौना घंटा हमने 5 बार बोल लिया, 4 बार बोलिए, 5वीं बार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई कैमरा ऑन करना भूल गया पिछली बार, कैमरा ऑन करना भूल गया, माइक नहीं ले लिया तो माइक में भी प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद कैमरा खराब हो गया, उसके बाद फोन नहीं रिकॉर्ड कर रहा, मेमोरी भर गई। इतने ही हमारे टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे नहीं खत्म होते। अरे चलो मैं बताया क्योंकि हमने माइक फर्स्ट टेल रिकॉर्ड करा ना माइक से, थोड़ा सा बताना न्यू पिंचे
उसका भी कोई पता नहीं, ਉਹਦਾ भी कोई पता नहीं सही रिकॉर्ड करना इन्होंने कि नहीं। ਜੇ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਪਲੋਡ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ 5-6 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਚੱਲ ਐਮਬੈਰੇਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਮੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ मेरे घर तो, मेरे घर से ना 100 मीटर स्कूल दूर था हिंदी ਇੱਕ ਗਲਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੋ तो हुआ क्या अब ਉਹ ਤੇ Imagine ਇੰਗਲਿਸ਼ करो- ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ही। इमेजिन करो जिसका स्कूल 100 मीटर दूर था वो स्कूल में डेली लेट जा रहा है। ਅੱਛਾ और हुआ क्या +1 और +2 मेरा फ्रेंड मेरे को पिक करने आता था, वो भी मेरे जैसा लेट ही जाना, उसका नाम यतिन है, वो भी लेट जा रहा है। इतने फाइन दिए हमने स्कूल में। यतिन भाई जब तू भी कर दे जतिन भाई चल बहुत गलत बात है। तो वो मेरे को पिक करने आता था 7:40 स्कूल स्टार्ट करना समर टाइम, तो उसने मेरे को कॉल करनी, चल मैं तेरे को पिक करने आ गया और मैं चल के भी नहीं जा रहा 100 मीटर और उसकी वेट कर रहा हूँ। उसकी वेट करने में कभी 5 मिनट वॉक पे है और वो मेरे को 7:30 फोन करके मार रहा हूँ और 7:45 वो घर से निकलता था। मतलब वो उसकी वजह से लेट हो रहा हूँ, उठता चलो मैं लेट ही था। जतिन भाई ने मारी की थी। ते यार उसके बाद हुआ क्या, जब +2 खत्म होने वाली ना, तो जो गेट कीपर था वो ना पापा को जानता था और उसको तब पता चला कि हाँ मेरे फादर वो हैं, तो वो ना पापा को जाके बोलता कि ये आपका लड़का, इसको मैंने इतनी बार गेट के अंदर किया है और हर बार लेट आता था, कुछ तो सिखा देना था इसको। आप सुबह 7 बजे शॉप खोल लेते हैं और ये 7:30 पौने 8 बजे तक ये घर पे ही रहता है। मैं स्कूल टाइम पे नहीं जा रहा, जबकि रात को मैं 8-9 बजे 10 बजे सो जाता था और रात को 12 बजे सो के 7 बजे शॉप खोलते थे। वही ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ पर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ अब ਗਿਆ। रियलाइज होता है ना कि हाँ वो ठीक। अभी प्राउड फील होता है। अब प्राउड नहीं फील होता, अब पता लगता है कि हाँ कितना ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। आवरली रेट यार। ਇਹਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕ ਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਘਰੋਂ ਕਲੌਕ ਇਨ ਕਰ। ਬ్రో ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਆ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਕੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ? ਮੇਰੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿੱਤੇ ਗਿਆ ਡੇਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟੈਲ ਗਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੈਲ ਗਾਣੀ ਹੈ ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਲੀ। ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਰੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਸੌਰੀ ਬੋਲ। ਉਧਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭੂ ਭਾਜੀ ਵੂਲਵਰਥ ਗਏ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਰੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ $70-80 ਹੀ ਬਚੇ ਸੀ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋਚ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 70-80 ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਬਾਸੀ ਮਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ $70-80 ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਰੋਸਰੀ ਬਣ ਗਈ 150 ਕੇ 200 ਦੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੋਭੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਯਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਕਾਰਡ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਐਡ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 100-200 ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਢੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਅੱਜ ਦੀ 5 ਅਗਸਤ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਭਾਜੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸ ਦੋ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਾਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਦਾਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਰੀ। ਕਿਹੜੀ? ਫਨੀ ਤੇ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਦੋਨੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਲ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੀਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਹੋ ਬੈਠੇ ਹੀ
वो पता छोटे कि बड़ी उसमें पता क्या हुआ था, मैं अपने डरता हूँ डैडी से बहुत ज्यादा। ये डैडी ने देखना है और डैडी बोलेंगे अभी झूठ बोल रहा है, लेकिन हाँ जी डैडी डर होता है ना सबका। तो मैं क्या हुआ, अपने नान के घर से आ रहा था वापस, ठीक है, मामा जी के घर से वापस आ रहा था, तो वहां पर उनके घर पे प्रोग्राम था, तो उन्होंने हमें ना टेक अवे में लिफाफे में दाल डाल के दे दी, और दूसरी साइड पे चावल थे, एक साइड पे दाल थी, और मैं ना ऐसे पापा के पीछे बैठा था ऐसे करके, है ना, मैंने एक साइड दाल पकड़ी और दूसरी साइड चावल पकड़े। तो क्या हुआ कि जब वो एक तो वो दाल इतनी ज्यादा गर्म थी कि वो ना पिलपला हो गया लिफाफा सारा, और रास्ते में ना पॉट होल मतलब इतना बम्प आया कि वो दाल, मतलब जब हमारा स्कूटर था ना पापा का, जब स्कूटर वो ना पॉट होल में लगा ना, तो वो सारी दाल की दाल नीचे बह गई है ना, और वो ना ऐसे जैसे वो सारी चौ के नीचे गिरी ना, वो लिफाफे के ऐसे बस एक डंडी बन के रह गई। अब मैं पापा से इतना ज्यादा डर रहा था कि मैं ना बस पीछे बैठा रह गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ सारे रास्ते पे, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं कारण बताऊंगा कि हाल पापा ऐसे पकड़ा किया क्या मैंने। अब चलो जी, अब 20 मिनट बाद जब हम घर पहुंचे, पापा स्कूटर लगा के हटे और उन्होंने पीछे देखा ना, भी ये क्या हुआ है ना, तो उन्होंने मेरे को कहा भी ये क्या था, मैं रोने लग गया। कहते क्या हुआ क्या ये, मैंने वो खड्डे में लगा और निकल गई सारी दाल नीचे, मेरा क्या कसूर है इसमें। तो तेरा तो कसूर है नहीं, तो लेकिन तू बता तो देता, हम पीछे जाके ले आते, अगर वहीं पर ही गिर गई तो बता देता, हम ले आते जाके। यार मैं सीरियसली लिफाफे पर होंदे कर लिए कहते लो दिन च पा दो, करे चावल खा ले, कहते चौड़ी कहते खंड पा के फिर सारे परिवार ने खाते। चल ये चलो ये दी बातें एम्बैरेसिंग होगी। हमने आज क्या डिस्कस करना था कि जो नया ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, कोई भी इंडिविजुअल, बी इट अ कपल, सिंगल पर्सन, कोई भी फैमिली जैसे कोई भी आ रहा है, तो उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बेसिक्स पता होने चाहिए यहाँ पे आने के लिए, और जो हमें पता है हमारे एक्सपीरियंस थ्रू, और लोगों की और होंगे, उनके पास नॉलेज और होगी, जो हमारे हम चारों के पास है उस बेसिस पे हम बता रहे हैं। और स्टार्ट बेसिक से करते हैं, स्टे की बात में पता क्या है, मैं सबसे पता ये ना, ये इसको क्लियर कर दूं, हमारे इंडिया वाले भाई बहन या परिवार, अगर आपकी आज फ्लाइट 6 बजे है ना शाम को, तो कम मैक्सिमम सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए 4-5 घंटे पहले आया करो वहां पर, ठीक है, किसी के पीछे लग के या परिवार के पीछे लग के एक रात पहले वहां पर आके ना, आप बाहर के आ रहे हो यार, फ्लाइट्स में अगर आप यूज्ड टू हो जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि 3-4 घंटे की वेट इज मैक्सिमम एंड इट इज गुड। अगर आप एक दिन पहले रात को आके पहुंच रहे हो ना, हुन तक किते जाना हो ते और 10 मिनट पहले यहाँ से ब्रेक देन, अब हमारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स में हम ऐसे रोक रहे होते थे, भाई मैं भी आ गया, मेरे को भी ले जाओ साथ में। अनाउंसमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਅਨਾਉਂਸमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆ। जब मैं मेलबर्न गया था, मेलबर्न की फ्लाइट मेरी थी सुबह 9:30 बजे, और 9:15 पे मेरे को एयरपोर्ट उतारने जा रहे घर से, 9:15 मैंने इसको उठाया, मेरे को ऐसे ही होता है भाई, ये अपने मतलब और भी कहीं पर होगा, या जो फर्स्ट टाइमर्स है ना भाई, प्लीज इस पे जरूर ध्यान दीजिए। इमिग्रेशन चेक इन में सब में टाइम लगता है, लेकिन 3-4 घंटे से ज्यादा किसी का टाइम नहीं लगता है, इसीलिए पहले ही आके मत बैठ जाया करो। अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी सीओई कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, आपकी टिकट, आपका जॉब ऑफर, ये जॉब वीजा, और ये आपका जो कॉलेज का होता है ऑफर ऑफर लेटर, है ना, और पासपोर्ट मेन खास करके। पैन कार्ड इतना जरूरी नहीं होता जितना पासपोर्ट जरूरी होता है। मेरे को किसने कहा था पैन कार्ड लेके जाइयो, पासपोर्ट कर ही रहन दियो। अब मैं लेके आया था। ਹਾਂ ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਯਾਰ, कोई नहीं पूछता। चलो स्टे का क्या होता है भाई, स्टे का ऐसा है कि हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि कोई बंदा यहाँ पर पहुंच रहा है या कोई परिवार यहाँ पर पहुंच रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आप किसी रिलेटिव के पास आ रहे हो या किसी थर्ड पर्सन के पास आ रहे हो जिसको आप पहले कभी मिले भी नहीं हो, लेकिन वो दूर का रिलेटिव है आपका, मेक श्योर करो कि वो बंदा आपको एयरपोर्ट से लेने जरूर आए, है ना, या वो ट्रस्टवर्दी इतना हो कि आपको वो आ जाए लेने। क्योंकि हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि हमें लास्ट मोमेंट के कई बार लोगों की कॉल आ गई है कि भाई मेरे को उसको कोई लेने आया था, काम पे आ गया है ना, वो काम पे आ गया है, या ये प्लीज आप अपनी श्योरिटी के हिसाब से आना। फ्रेंड के पास आ रहे हो, किसी फैमिली के पास आ रहे हो, है ना, अपनी तुम्हारी खुद की स्टूडेंट अकोमोडेशन है, या अगर खुद ही प्रबंध कर रहे हो ना अपना, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कई बार क्या होता है, अगर आप किसी फ्रेंड या थर्ड पर्सन के पास एक हफ्ते के लिए भी आ रहे हो, उसके ऊपर भी ज्यादा बोझ मत बनो, अपनी अकोमोडेशन को खुद फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। FB मार्केट प्लेस पे देखो, गम ट्री पे ढूंढो, गम ट्री पहले बता दूं, गम ट्री इज ऑल्सो हब
जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा यूजर्स यूज करते हैं, जिसमें आपको यही नहीं है कि घर मिलेंगे, उस पे आपको एक छोटा पेचकस बेचने से लेके आपकी गाड़ी तक सब कुछ उसी पे होता है। तो मेक श्योर करो कि आप अपनी गमट्री को अपने फोन में डाउनलोड करो, साइन इन करो अपनी ईमेल के साथ, और उस पे आपको घर के ऑप्शंस, कोई फैमिली शेयरिंग में डाल रही है, वो सब कुछ उसी में मिल जाएगा। उसके बाद हम करते हैं आईडीज की बात करें। आईडीज की आईडी से पहले फैमिली वाला जो इंसिडेंट था तेरे फ्रेंड के फैमिली का इंसिडेंट, देखो भाई ये यहाँ पर बहुत होता है। मेरे फ्रेंड का किस्सा है, वो यहाँ पर किसी फैमिली के पास आया था, है ना। अब वो फैमिली, देखो मैं तो उनके साथ रहा नहीं, तो मेरे को तो कोई खास पता नहीं है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा पता चलता था, वो इतना टॉर्चर करते थे उसको भी, मतलब वो बेचारा 7 घंटे की शिफ्ट लगा के आ रहा है, बाद में कॉलेज जा रहा है, कॉलेज के बाद भी अगर घर पहुंचेगा ना, तो सामने जिन भैया भाभी के पास आया था, वो भाभी बोलेगी चल अभी तू बर्तन साफ कर दे, अभी तू पोछा लगा दे, अभी तू चल ये आ गया, अभी ये कर देगा। मैंने खुद उसके साथ ये होते हुए देखा है। मैं कई बार बंदा फील करता है भी यार ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप बाहर बाद में आए हो तो आपसे पहले आने वाले आपसे काम करवाएंगे, आप मतलब सब बांध के करते हैं। ज्यादातर रिश्तेदार बुली करते होंगे या मैं भी तो है ना नहीं ये बुली हुआ है ना, ये बुली हुआ ना। अरे अंदर ही लगा, मैं मजाक करता। बुली पता क्या होता है? बुली ये होता है कि इसमें मैं चाय पी रहा हूँ और इसका टेम्परेचर लो है, जा माइक्रो करके ला। तू होता ही है वैसे। नहीं तो ऐसा है कि हाँ ये चीजों का ध्यान रखो अपनी फैमिली से ज्यादा होता। हाँ, और अगर किसी रिलेटिव के साथ आए हो ना, रिलेटिव के पास आए हो, तो अपनी उस रिलेशन को बचाने के लिए ट्राई करो उस रिलेशन से, उस रिलेटिव से बचा, क्या बोल रहा हूँ, जल्दी निकलेंगे, घर से जल्दी निकल जाओ। घर से जल्दी निकल जाओ, मूव आउट हो जाओ, कोई और फ्रेंड सर्कल बना लो यूनी में। इंडिपेंडेंट लाइफ में ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, आप हिंदी में बात करते हो? पेरेंट्स से, आप पेरेंट्स से नहीं, सॉरी, आप रिलेटिव से दूर रहते हो। देखिए जी, ये होता है ग्लिच। आपकी हिंदी कब से इतनी अच्छी होगी कि आप हिंदी में कम्युनिकेट करोगे? उसका जो प्रोसेस है सारे स्लो है, मेरा गला हिंदी में स्लो है। पर बढ़िया बोल गए हो। चलो अब मैं नहीं बोल रहा भाई। चल आईडीज से बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें सबसे पहले तो आपने ऑस्ट्रेलिया में आके सिम कार्ड लेना, जो आपको सर्वोस, ग्रोसरी स्टोर्स हर जगह मिल जाएगा। न्यूज़ एजेंसीज वगैरह, सर्विस स्टेशन यानी कि फ्यूल पंप कहने आप इंडिया। हाँ, तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है? बैंक अकाउंट ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਮ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ फोन नंबर एड्रेस प्रेफर करो, हार्ड कॉपीज लेके जाओ अपने साथ, कभी भी फोन वाले डॉक्यूमेंट्स को कैरी करो अपने साथ, इंपॉर्टेंट होता है। पासपोर्ट तो पासपोर्ट तो ही चाहिए। हार्ड कॉपी भी नहीं चलेगी उसकी, आपको पासपोर्ट ही कैरी करना पड़ेगा। हाँ, पासपोर्ट कैरी करो, बाकी प्रिंट आउट्स अपने वीजा के या किसी कहीं भी जा रहे हो तो प्रेफर करो अपने पास बैग्स में अपने कैरी करके रखो। टीएफएन नंबर है एक टैक्स फाइल नंबर, जो सबसे बेसिक चीज है। आप यहाँ पे आके ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो और गवर्नमेंट वेबसाइट से बनवाना है जाके। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी के पैसे देने की जरूरत नहीं है। फ्रॉड बहुत बैठे हैं। इसके साथ भी, इसके साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था? मेरे साथ हुआ नहीं था, वो यूनी में लड़का था दूसरा बलजिंदर, जो उसके साथ हुआ था। उसने पैसे देके बनवाया, फ्री चीज उसको कॉस्ट करी है। जब नहीं बनदा भी नहीं है, वो चलदा भी नहीं है, जेड़ा पैसे दे के बनदा ना। नहीं वो चलदा, पर वो सेम चीजें हो रही है, बट ਤੁਸੀਂ बदले पैसे दे रही हो। हाँ, और वैसे भी आजकल सभी टैक्स से भी इतने हैं कि हाँ सबको पता है कैसे ऑनलाइन जाना, अपनी डिटेल्स भरनी है। आपके पास ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਪਾਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲ ਸਰਚ पे ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਅਪਲਾਈ ਫॉर TFN ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ATO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ www.ато.gov.au। ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ATO ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ABC CBD ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ पैसे मंगने पड़े। .gov.au बेसिकली वेबसाइट है। AU वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करो TFN के लिए, टैक्स फाइल नंबर। और फोर्थ चीज है स्टूडेंट आईडी। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कभी मिस ना करो, ओरिएंटेशन डे कभी मिस ना करो। वहाँ पे बेसिक्स बताएंगे, क्योंकि जब हम इंडिया से आते हैं ना, हमें असाइनमेंट्स की इंपॉर्टेंस मुझे नहीं पता थी इंडिया, क्योंकि स्कूल में नहीं, मैं स्कूल +2 के बाद आया हूँ ना, होती नहीं है इंडिया में असाइनमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे आके जब पता चला ना असाइनमेंट है, तो हमने इग्नोर कर दिया फर्स्ट सेमेस्टर। इसकी वजह से हम सभी ने नहीं, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कहते हैं सप्ली लगी थी, ठीक है, बाकी कईयों की और
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 60% ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40% ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40% ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ 10% ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋੜ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਨਾਰਮਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੈਜਿਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैज या आईडी होगी। हाँ, आईडी होती है, आईडी भी ते बेल्ट कैरी करते हैं। और अगर कोई आईडी दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक आइसोलेटेड एरिया में जहाँ पे और कोई आपको कोई कुछ नहीं दिख रहा, आपके सामने एक सिविल ड्रेस में कोई एक पुलिस ऑफिसर है आपसे कोई बात कर रहा है, अगर वो आपको आईडी दिखाता है उसकी फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। अपना कैमरा सभी के पास है, फोन आजकल सभी इतने स्मार्ट है कि एटलीस्ट बेसिक कैमरा होता है, उसमें उस आईडी की फोटो खींच लो। अगर वो आपको कंफर्टेबली दिखा रहा है कि ये लो फोटो खींच लो, क्योंकि ये लॉ है। पुलिस अगर हम कहें ना पुलिस को हमने रिकॉर्ड करनी है कोई चीज, वो करने देते हैं। अगर वो कहीं नहीं कर सकते मतलब वो फ्रॉड है। लेकिन ये फर्स्ट कमर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ वार्न कर रहे हैं कि आजकल स्पैम बहुत आ रहा है। आजकल इंडिया में कॉल सेंटर बने हुए हैं, फोन आ रहे हैं कुछ, और ये होता नहीं है, नहीं होता। ये स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, कोई आपको आके कुछ नहीं पूछ रहा, बेसिक बहुत नॉर्मल लाइफ चलती है यहाँ पे, इतना कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। और कॉलेज जाओ, हमेशा यूनी जाओ, जहाँ पे भी आए हो वो मिस ना करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह पे उसी की बेसिस पे आपको वीज़ाज मिलेंगे फ्यूचर में, और उसी के बेसिस पे आपको रेजिडेंसी मिलेगी अगर आप उसके लिए आए हो। फिफ्थ चीज़ होगी ट्रैवल पासेस। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स, आपको ट्रैवल पासेस चाहिए होंगे। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या बोलते हैं, स्टूडेंट कंसेशन, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है ना, इसी वजह से स्टूडेंट आईडी आपको जरूरत पड़ेगी ओरिएंटेशन डे वाले दिन। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, हाफ प्राइस हो जाती हैं वो चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर $4 की ट्रिप है, वो आपकी $2 की हो जाएगी। और जब आप नहीं आते और इनकम ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸਭ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ फिजिकल आईडी। ਤੇ ਆਪਣੇ सेम प्लान भी हेल्प आउट कर दिए। तो आपको स्टूडेंट कंसेशन मिलेंगे इसमें। और आपको ट्रैवल पासेस की बात आई तो ट्रैवल पासेस में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ट्रैवल पासेस चलते हैं। जैसे क्वींसलैंड हो गए, जो केन्स आ रहा है, टाउन्सविल आ रहा है, ब्रिस्बेन आ रहा है, उनके लिए गो कार्ड। जो विक्टोरिया, मेलबर्न, जिलोंग, माइकी कार्ड। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी और नेबरिंग सिटीज जो भी सिटी में होगी वो हो गए ओपल। और जो तस्मेनिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबका मेट्रो है। और तस्मानिया में हो सकते हैं डेवनपोर्ट, लॉन्सेस्टन, होबार्ट। चल भाई, इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है आईडीज में, जिनको आना जाना है वो कर लेंगे। मेलबर्न, ब्रिस्बेन, न्यू कमर्स मोस्टली वही जाते हैं। चलो अब बात करनी है जॉब्स की, है ना। एक तो जॉब से पहला ना आईसिक कार्ड बारे दसना चाहना। जो आईसिक कार्ड बेसिकली ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ आईसिक क्या मतलब ISIC ओके। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 140 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਰੋਲ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਲੈਪਟਾਪ ਬਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਪਾਰਕਸ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। अच्छा। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। उसके लिए लिंक वगैरह वो कह रहा है भाई भी ਲਿੰਕ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆਈਸੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ डिस्काउंटेड प्राइस मिलू। ओके। चल, अगर तेरे को लगता है ये बात सही है सब, तेरे को कोई ऐसी चीज है भी इसके कार्ड के पे करने पड़ते हैं या तू? आई थिंक कुछ इनकी मेंबरशिप होती है पर एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, तो फिर अगर मेंबरशिप है तो फिर आप अपने हिसाब से अपने देख लेना भी, अगर आपने करना है कि नहीं। ये ना एक्सपेंसिव नहीं, मेंबरशिप होती है आई थिंक मंथली एनुअली, पर वो स्टिल जितना थोड़ी सेविंग्स होनी है लास्ट मोमेंट पे वर्थ इट है। लेकिन हम मेंबरशिप में आपको लास्ट में एक चीज बताएंगे, चलो उसको बाद में ही छोड़ते हैं। पहले भाई तू जॉब्स की बातें कर ले कि कैसी कैसी जॉब्स लोगों को करनी पड़ती है आके, या क्या क्या करना पड़ता है और क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, है ना, उस हिसाब से बात करते हैं। जॉब्स का तो यार ऐसे है भी बेस्ट की
फ्रेशर जॉब्स जो फर्स्टली जो आपके रिलेटिव्स हैं और भाई को ये ग्लिच समझ आता ही नहीं है कभी भी, इसको क्या बोलना है क्या नहीं। कभी बार में फ्लुएंसी होती है ना ऐसे नहीं वो तो फ्लुएंसी तू सही है, जान दो जिद्दां चल जैसे मर्जी जाने दे, तू पंजाबी ऑडियंस संभाल रहा है और ये तेरे साथ पंजाबी ऑडियंस देख रहा है, हम हिंदी देख ਪੰਜਾਬੀ रहे हैं। ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੋਲਦਾ चलो ਚਲੋ ਫਰਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਬੈਸਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਜੋਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਲਬਨ, ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸੈप्ट ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ इंटरनेशनल बेसिकली, International, इंटरनेशनल लाइसेंस कहीं से भी आ रहे हो आप। ਹਾਂ ਵੀ ਡੋਰ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਉਬਰ ਈਟਸ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੇ ਤਸਮਾਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਸਮਾਨੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਬਰ ਈਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਲੋ ਕਰਦੇ। ਉਬਰ ਇਟਸ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਲਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਬਰ ਵੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ मैं ਉਹ पहले ही सुन रहा हूँ। ये मेलबर्न मेलबर्न एंड एंड सिडनी है कि हाँ अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ पे तो आप डोरडैश वगैरह उबर नहीं कर सकते हैं। ਡੋਰ ਡੈਸ਼ ਮੈਨੂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ Uber में। Indian। Uber ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਰਸਟਲੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਜੌਬਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗਾ, 2 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। मैं 3-4 डेज मैंने रेस्टोरेंट में गया था, वो मैंने छोड़ दी क्योंकि वो लाइन मेरे को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद लॉजिस्टिक्स देखा भाई को लाइनें अच्छी नहीं लगती, फिर लाइन चलो। छोड़ के दूसरी बात। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਮ किचन एंड प्रेफर सभी के लिए यार इसमें मैं वो नहीं बोलना चाहता कि मोस्टली लॉजिस्टिक्स में मेल डोमिनेटेड वो है इंडस्ट्री है एटमॉस्फेयर है ना। और अगर तो अब एक मेल प्रेफर करो लॉजिस्टिक्स में जॉब ढूंढो, आपको आवर्स रिस्ट्रिक्टेड होंगे पर इनकम अच्छी होती है उसमें। ਚਲੋ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ? ਫੂਡ ਪੈਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਪੰਪਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ 24/7 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ? ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਉਬਰ ਈਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਡੋਰ ਡੈਸ਼, ਡਿਲੀਵਰੀ, ਮੈਨੂਅਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। हाँ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜੌਬਾਂ? ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके पास आप आए हो, वो कहता भाई नहीं कहता। उनके लिंक्स में बहुत सारे होंगे। ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਜੌਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਪਲੇਟਸ ਵਗੈरह डिस्ट्रीब्यूट करने लोगों ने मेल बॉक्स भेजने हैं, तो भी कैश जॉब वही हुई मनप्रीत भाई मेरे को नहीं लगता यार ऐसी मतलब ये इतनी मजबूरी वाली जॉब्स भी करने की जरूरत नहीं है ना। अगर कोई स्टूडेंट बंदा आ रहा है ना मेरे हिसाब से उसको ऐसी जॉब तो एक आधी स्टेबल जॉब तो हो ना, ये ब्रोशर देने वाली ये कोई जॉब नहीं वो इतना देखो जिਵੇਂ 20 आवर्स लिमिटेड ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ 20 वो मैं तेरी बात समझता हूँ क्योंकि जिसके ब्रोशर आज बांटने हैं ना वो कितनी बार बांटोगे, वो 1-2 बार ही होगा। नहीं वो मैं कहना ना जिਵੇਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਜੌਬ ਹੋਗੀ ਉਹ 24 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $20 ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। लेट्स नहीं, नॉट नहीं। गो देयर बिकॉज़ सबकी नीड्स अलग हैं। इस वजह से हम फिलहाल वो बेसिस पे चलते हैं कि लीगल काम करो, ठीक है बिल्कुल। है ना। वो कोई बात कैश नहीं जॉब होती कोई कुछ ना नहीं करो। इनकरेज ਤਾਂ ਕरें सारे है ना? लीगल रहो हाँ, क्योंकि हाँ। इफ यू सी योर फ्यूचर इन दिस कंट्री ਤੁਸੀਂ हाँ, legal legal। भी सारा अपना क्लियर कर रखो। हाँ मैंने 20 आवर्स से ज्यादा काम नहीं किया पूरे स्टूडेंट लाइफ, है ना। और इनका भी यही था, मैंने भी 20 नहीं आवर्स से नहीं किया काम। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ तुम्हारा ਕਰਦਾ भी- ही क्योंकि फुल टाइम। पर आपको अलाउड था ना, COVID मुझे अलाउड था के कि बाद, गवर्नमेंट ने अलाउ किया वही- हुआ वही था। अभी कहना। कर दिया ना वापस, अभी 24 ही कर 24 कर दिया, 24 आवर्स करता है तू काम। लीगल काम करो, कभी भी लीगल नहीं करना क्योंकि किस्मत का नहीं पता होता। और एक लीगल में आपको अच्छा पे रेट भी मिलेगा। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप यहाँ पर आते हो ना तो किसी देसी के पास या किसी के पास रखवा देंगे आपको, तो $10-15 आपको घंटे के देगा, है ना। तो वो आपसे 40-50 घंटे काम करवाएगा, लेकिन आपके पैसे उतने ही बनेंगे जितने आप 24 घंटे का अच्छे पे रेट पे काम करोगे। हाँ, प्रेफर लीगल। हाँ, इसलिए आवर्स आप ये चीज जरूर देखो कि जितना आप इनपुट, जितनी आप हार्ड वर्क डाल रहे हो उतना आपको आउटपुट मिल रही है कि नहीं। कई बार कहीं अच्छी जॉब 24 घंटे के लिए आपको बहुत अच्छा पे कर देगी, वो उसी की बराबरी आप किसी दूसरी जॉब से कर सकते हो जहाँ पर आपको 50 घंटे काम करना पड़ेगा। स्किल अपग्रेड करते रहो। मैंने स्टार्ट किया था पिकिंग से, फॉकलिफ्ट, उसके बाद अपग्रेड करते करते अभी मेरा एडमिन में काम है ना, है लॉजिस्टिक्स में ही है पर स्किल अपग्रेड करते रहो। इसका भी सेम है एडमिन, ठीक है। अभी किचन एंड तो काम स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ शेफ तक आ गया। शेफ तक आ गया।
है ना। और मनप्रीत देख लो, ये रेस्टोरेंट में काम किया है इसने तो बहुत जगह काम किया और अभी सपोर्ट वर्कर है। तो स्किल अपग्रेड करो, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। और रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करें, आप रजिस्टर कर सकते हो, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो, उनके पास ओकेजनली काम निकलता रहता है, आपको हेल्प आउट करेगा। नहीं बहुत सही है। और इसके जॉब्स में ये वेबसाइट में जाके अप्लाई करो, सब में रजिस्टर करो और उसके बाद आपका जॉब में कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा भाई। हर किसी का कहीं ना कहीं हो जाता है। वेबसाइट्स इंडीड, सीक एंड जोरा, तीन ही वेबसाइट जोरा बढ़िया। गमफ्री जोरा 10 नंबर गया। वही जो है शायद। चलो भैया हम लंबा खींच रहे हैं, इसको ठीक है, छोड़ो। चल। इसके बाद आती है बात एंगेजमेंट की। मेरे सामने आधे घंटे दा हो गया यार। यहाँ पे इसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा इसको खत्म करना है, इसको 2 भागों में बांटना है। इसको हाँ चल part ऐसा part कर two लो। कर देंगे काफी इसका। कंटेंट हो जाएगा ना। नहीं ऐसा कर लेते हैं। चलो आगे वैसे बातें पड़ी है हमारी करने वाली। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ doubt ਪੈਂਦੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, DM ਕਰੋ, message ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰੋ, ਦਿਓ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਚ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੀਚ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ YouTube ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਚਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। ब्राउन टेल्स ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਤੇ ऑल्सो जिनके लिए ये जो हमें पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं भाई, हम हैं द ब्राउन टेल्स और ये हमारा सीजन 1 चल रहा है जिसमें हम अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो अगर आपने ये आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर हमें जाके यूट्यूब पे देखें, हमें फेसबुक पे देखें, हमें इंस्टाग्राम पे देखें। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट जो भी करना होता है सब कुछ करो। ठीक है ਗੱਲ ਬਕਾਓ। और इसको रैप अप करते हैं हम इसी के साथ। और तू कर भाई, तू कुछ नहीं बोलता सारे ब्लॉग में, टेल में। टेक केयर, बी हैप्पी। सॉरी गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी। ਐਂ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ। ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਟੇਲ।